realistically, whether that's even possible, given the fact that we are not even seeing eye to eye when a war is raging. Why should you ask us this question? Why not, Shouldn't sir? this question be asked to the government? It's their responsibility to ensure that they take everybody along. But they took everyone along. Yesterday there was an all-party meeting for which the LOP didn't show up. Did the Prime Minister show up? The Prime Minister has given 2 speeches in Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha, explaining Did he do a India's... debate in Parliament? Man ki baat in Parliament is not what we want to hear. We But- want to have a discussion. We want to have a debate. Okay, but what you wanted to hear, the Congress party and the opposition has been saying what for the last 3 weeks? We have questions on behalf of the people of this country, and we want those questions answered, right? That's your position. Now, if the government is calling an all-party meeting specifically to have the opposition's questions answered, why should the TMC say we are not coming? Why should the leader of opposition say Not main nahi a aunga? single question was answered. Our first question, now let me ask these questions right here. Your viewers have a right to know what our question. Our question, why did the Prime Minister have to go running to Israel when everybody in the world knew that there is a war coming? Why do you have to stand there? I stand with Israel. Arey bhai, why do you have to stand with Israel for that nakli medal that they gave him? Believe me, that medal did not exist. And after the Prime Minister comes back, that medal will not exist. This was a made for Modi medal. आप वो medal लेने चले गए साहब Israel क्यों गए? Who asked you to go there? But why not? Why should you take a stand? No, but should prime ministers not travel to different countries on This Prime diplomatic Minister has diplomatic visits? This Prime Minister has an amazing track. He went to Japan. Within 24 hours, the Japanese Prime Minister had to resign. He goes to Israel. Within 48 hours, there is a war. Illegal war. अरे तो उनकी गलती थोड़ी ना है गलती ये है साहब कि आप सीधे खड़े रहिए. आप मत झुकिए ईरान की तरफ. हम नहीं कह रहे आप ईरान की तरफ झुक. सीधे तो खड़े रहिए. नियम आधारित व्यवस्था, रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ तो खड़े रहिए. कुछ सिद्धांतों पर तो खड़े रहिए. That's what we have been asking Prime Minister to do. That's what India has always done. But our principle and our siddhant is non-alignment, which the Prime Minister has displayed. I stand with Israel is not non-alignment, madam. That was before the war. That was just 48 hours before the war. But did he know the war was breaking out? Okay, now, yes, good question. Ayatollah Khamenei gets assassinated. A non-aligned country, a Prime Minister of a non-aligned country, should at least condemn that killing, should at least condole that killing. Did you hear the Prime Minister condole or condemn this assassination of a head of state? What non-alignment are you talking about? How many countries around the world condemned the assassination? We are talking about India, which is non-aligned according to you. And a lot of countries did condemn, by the way. Even Pakistan condemned. Acha. So the government, see, I'm not a spokesperson for the government. Well, I'm sure you're not. But this is what the government's point of view is when the opposition raises this question. They simply say, when the Iranian embassy initiated the entire condolence book, भाई हम तो पहले दिन पहुंच गए साइन करने. अरे साहब, मलेशिया में बस एक्सीडेंट होता है, प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं. इंतजार नहीं करते मलेशिया की एम्बेसी कोई बुक खोलेगी. This is the head of the state, for God's sake, being assassinated by America and Israel in an illegal war. First of all, the war is illegal. You do not condemn the war. Second, 168 school-going girls were killed by Israel and Iran. No condemnation. But Mr. हिम्मत नहीं है. Epstein, याद रखिए, there is something called Epstein. ये डरते हैं. लेकिन आप हर चीज में एप्स्टीन ले आते हैं. हम नहीं लाते. Epstein हर की चीज में आ जाता है. नहीं, देखिए, पार्लियामेंट अगर आप पहुंचे तो 2-3 चीजें हैं जो ऑपोजिशन लेके खड़ी हो जाती है. एक बोलती है प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज, इलेक्शन कमिशन कॉम्प्रोमाइज. अच्छा, आप मुझे प्लीज चलिए, वेरी गुड. नहीं, 1 मिनट, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, जो आप बार-बार एप्स्टीन ऑपोजिशन करता रहता है, especially in regard with the prime minister of this country, on what basis, sir? On the basis of a couple of emails between No, forget those emails. between 2 people. I am not talking about, I will not talk about emails or females, okay? Let's talk about the conduct of the Prime Minister. Operation Sindoor. Ceasefire कहां से आया भाई घोषणा? अमेरिका से. डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं साहब ceasefire हो गया. इंडिया ने बोला एक सेकंड, बाद में बोला. पहले, sorry. The announcement came from Donald Trump, not from my Prime Minister. Then Donald Trump 100 times has said jets were falling and I ensured that there was a ceasefire. Who are you to ensure a ceasefire, bhai? I have a Prime Minister of my own. People have elected Narendra Modi, not Donald Trump. Compromise है या नहीं बताइए? चुप है. एक हिम्मत नहीं होती बोलने की, साहब डोनाल्ड ट्रम्प आप झूठ बोल रहे हो. क्यों नहीं बोलते आप? हिम्मत क्यों नहीं है? अभी सुनिए ना, अभी तो शुरू हुई है बात. आगे भी तो बोलने दीजिए. आगे भी तो बोलने दीजिए. आप डोनाल्ड ट्रम्प had nothing to do. ना, एक बार नहीं बोलने की. एक बार बोला डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लेकर कि ये गलत है. एक बार नहीं बोला. आप दिखा दीजिए, लाइए अभी दिखा. I'll wait. No. Mr. Khera, the government. बोलिए ना, मोबाइल दिखाइए ना. मेरे पास मेरा मोबाइल है. मेरा लीजिए. नहीं, आप रखिए अपना मोबाइल. Thank you very much. My point is that the government has said there has been no third
third party mediation between India and Pakistan. Why should we not believe? Why did the announcement come from Donald Why Trump? should we not believe? Why our Prime was Donald Minister? Trump the first person to inform India that there is a ceasefire between India and Pakistan? Tell me. अच्छा अब आइए ट्रेड डील पे. आपने तो एक भी रोक दिया मुझे, दूसरे पे आइए. ये ट्रेड डील साइन नहीं हुई है भाई, लेकिन शर्तें हम मान रहे हैं. अरे जब कोई साइन ही नहीं हुई, व्हाई डू यू हैव टू ओबे? आप हाथ बांध के खड़े हो डोनाल्ड ट्रंप के सामने. मलेशिया तक ने हिम्मत दिखाई कि साहब हम नहीं मानते इस ट्रेड डील को. उन्होंने साइन कर दी थी बाय द वे. हमारी साइन नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका clearly went against these tariffs. We did not have the courage to wait for the Supreme Court order. 18 days before the Supreme Court of USA did what it did, we went running. कि साहब आप जो कहेंगे हमें मंजूर है. आप कहेंगे रशिया से तेल नहीं खरीदना, नहीं खरीदेंगे. आप कहेंगे ईरान से नहीं खरीदना, नहीं खरीदेंगे. ये क्या है? कॉम्प्रोमाइज नहीं है. Mr. Khera, as the opposition, it's a very convenient position to be in because you can say exactly what is on your mind, right? Because you're in the opposition. Can a government really do it? I'm asking you this question seriously. Well, we have been in government live, also. Yes. We've been in government for 54 years and 7 months. But we and live 15 days. And we live in a difficult world right now. We always lived in a Where- difficult world. where When was the world not difficult? where There was pragmatism- 1971. Was the world easy then? Where pragmatism may be required when it comes to our relationship with different countries. Well, pragmatism cannot be a cover for cowardice. This prime minister is not just compromised. I'm sorry, he's a coward. ये कायर हैं, ये डरते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, ये चीन को क्लीन चिट दे देते हैं, ये चीन से डरते हैं. अब हमें नहीं मालूम ये एप्स्टीन से डरते हैं, नहीं आप बताइए. मुझे नहीं पता. आपने कहा ईमेल्स का जिक्र नहीं करना क्योंकि हरदीपुरी आने वाले होंगे, आप बैठे हो तो हमें नहीं नहीं, मालूम. मैंने ये नहीं कहा ईमेल्स का जिक्र नहीं करना. मैंने कहा 2017 की जो ईमेल्स हैं जिनको लेके अरे साहब उन ईमेल्स पे चलिए. अब आपने ये ईमेल्स बोला है. नहीं, सुनिए. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोज एंड डांसेस एंड सिंग्स इन इजराइल टू मेक डोनाल्ड ट्रंप हैप्पी. ये लिखा या नहीं लिखा बताइए मुझे. अरे कुछ भी मैं लिख ये दूं कि लिखा- आई अच्छा, एम द वाह, क्वीन ऑफ वाह, वाह, ईमेल. वाह. आप मेरी बात आप मान लेंगे. क्या बात है? वो ईमेल्स आप मेरी- एफबीआई, वो आप मेरी बात ईमेल्स मान लेंगे. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिलीज किए. हाँ, लेकिन those emails are between two people who Two could people. claim what to claim. चलिए फिर Epstein आइए and आइए. Anil No, Ambani. I am very happy you have challenged me on circumstantial evidence. Anil Ambani goes and says Prime Minister will visit Washington. Prime Minister visits Washington. अनिल अंबानी के कहने से वो हुआ ना, तय हो गया ना आपस में. अब हम यह जानना चाहते, दिल्ली के नए नए एलजी बने, हम उनको बधाई देते हैं. मिस्टर तरनजीत सिंह संधू ये एम्बेसडर हुआ करते थे उन दिनों में. क्या इतने नाकारा थे जयशंकर, क्योंकि वो भी एम्बेसडर, संधू, हर्षवर्धन श्रृंगला, कि अनिल अंबानी और हरदीप पुरी तब कुछ नहीं थे, माफ कीजिएगा, जीरो. ही वाज अ रिटायर्ड मैन, फुल स्टॉप. इनके थ्रू फॉरेन पॉलिसी तय होती थी. एप्स्टीन फॉरेन पॉलिसी तय करता था. शर्म आनी चाहिए साहब इस देश को कि ऐसा प्रधानमंत्री आ गया ये तो जो claims इतना है ना. कॉम्प्रोमाइज. ये तो क्लेम्स है, प्रूफ ये कहाँ है? क्लेम्स कैसे? अरे साहब हम तो आपको 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, मैं- टाइम्स नाउ ने नहीं चलाई एक. अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपको खुद कॉल करके आपसे बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस. लेकिन मुझे दिखी नहीं वो. नहीं चलाइए. नहीं दिखी. हमने स्पष्ट तौर पे आपको बताया. देख नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम ये है. कभी कभी देखते हैं टाइम्स, ऐसा नहीं. हमने स्पष्ट दिखाया. डिफेंस की जो प्रोक्योरमेंट हुई, द प्रोक्योरमेंट्स हैपेंड फ्रॉम इजराइल आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड इन 2017. आई थिंक इट वाज जुलाई 2017. एवरीथिंग वाज बीइंग डिक्टेटेड बाय एहूद बाराक, एप्स्टीन, अनिल अंबानी, हरदीप पुरी. These are the 4 architects of our foreign policy. None of them was in government. अच्छा, कैन आई आस्क यू दिस? आप इसको बात को टाल क्यों रहे हो? नहीं, मैं टाल नहीं रही हूँ. मैं बिल्कुल आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम दैट थॉट एंड कंटिन्यूइंग विद. मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप व्हाई डू यू वांट इंडिया टू पिक अ फाइट विद एवरीवन? इजराइल नहीं जाओ, इजराइल क्यों हमने गए? क्या कहा? उनसे क्यों डिफेंस डील्स कर रहे हो? आई रिपीट, अमेरिका क्यों गए? आई रिपीट, अमेरिका के टैरिफ्स इतने आ रहे हैं, व्हाई कांट? सबसे लड़ाई कर रहे I हैं हम लोग. repeat, all that we expect the Prime Minister of this glorious country is, please stand straight. लेट मत जाइए इजराइल के सामने, झुक मत जाइए अमेरिका के सामने. रुकिए साहब, क्योंकि हम जिस परंपरा से हैं वो 1971 की परंपरा. हम आंखों में आंखें डाल के निक्सन के कहते थे साहब जाइए हम बांग्लादेश को आजाद करेंगे, और हम करते थे. ये ताकत थी हमारी. उस ताकत को कॉम्प्रोमाइज मत होने दी. ये इन्होंने तो आप मुझे बताइए चीन को क्लीन चिट देने की जरूरत क्या? ये कितनी सीडीज हैं प्राइम मिनिस्टर की, किस किस देश के पास हैं साहब? एक बार लिस्ट दे दीजिए हमें, ताकि हमें भी मालूम पड़े आप इनसे डरते हो. चीन से अब स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी हैं, चीन बहुत को- रोज कुछ ट्वीट कर रहे हैं. नहीं, मधु उनको तो मधु छोड़िए. किश्वर हैं, कोई रोज ट्वीट कर रही हैं. हमें ये तो बीजेपी के अंदर की आवाज है साहब. चीन को क्लीन इस चिट पे भी आइए, वापस कैसे आइए. दी रुकिए है? रुकिए रुकिए, इस पे आइए. ये बीजेपी के अंदर की आवाजें हैं. क्या सुब्रमण्यम स्वामी को बीजेपी से बाहर करने की हिम्मत दिखाई इन्होंने? नहीं. क्यों नहीं दिखाई? वो क्या क्या लिख रहे हैं मैं बोल भी नहीं सकता. ऐसी ऐसी चीजें वो लिख रहे हैं. मुझ जैसे आदमी को जो सब कुछ खुलकर बोलता है, मुझे भी शर्म आती. ये तो हर्ष से हुआ ना, वो इसको गॉसिप कहते हैं. ये गॉसिप नहीं है. गॉसिप नहीं है. देयर इज इनफ सर्कमस्टेंशियल, Gossip को न्यूज़ देयर इज चैनल इनफ पे एविडेंस. न्यूज़ नहीं दे सकते. ये दिल्ली में एक मंत्री है कपिल मिश्रा, विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने जो जो कहा है वो गॉसिप है. हटाइए विधानसभा के रिकॉर्ड से. अभी सीएम आई थी, बोलिए उनको. Can I just ये गॉसिप नहीं है मैम. Can I just come back to the issue of the Prime Minister? आप कह रहे हैं Prime Minister. I am discussing the issues of the Prime Minister. So आप Several issues of the Prime Okay, आप कह रहे हैं कि सीधे खड़े रहे, ना इधर झुके ना इधर झुके, लेकिन अमेरिका के सामने लेट. ठीक है, your words not mine. I want to ask
ask you, did you hear the Prime Minister's speech in the Rajya Sabha and the Lok Sabha over the West Asia I'm war? afraid I had to. Yes, you had to. Even his Part of my critics, job, unfortunately. even his critics, Mr. Khera, are saying it was a statesman-like speech. I haven't heard a single critic, unless those critics all work with Times Now, who said it was No, a they statesman. don't. ये They आरोप have प्रधानमंत्री various पर किसी ने नहीं लगाया कि वो स्टेट्समैन है, आप लगा रही हैं बस ये आरोप. अरे, ये आरोप नहीं लगा कभी. उस स्पीच के साथ He is not even a leader. You are talking. चलिए, उस स्पीच के He's साथ not आपको even a क्या leader. problem आप हो? उसको स्टेट्समैन बोल रहे आप हैं. मुझे बताइए उस स्पीच के साथ आपको क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि सवालों के जवाब नहीं मिले. क्यों दौड़े दौड़े गए इजराइल? क्या जरूरत थी कहने की आई स्टैंड विद इजराइल? क्यों नहीं आपने निंदा की एक गैर कानूनी युद्ध की जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर छेड़ा? क्यों नहीं आपने शोक व्यक्त किया आयतुल्लाह खमेनी की हत्या पर? क्यों नहीं 168 स्कूल जाती हुई बच्चियों की हत्या पर की आपने निंदा की? ये हमारे सवाल थे. जवाब मिस्टर खेरा, ट्रेड डील में दौड़े दौड़े चले गए. मिस्टर खेरा, ये क्यों सारे आप सवाल अमेरिका की अनुमति मांगते हैं कि क्या मैं रूस से तेल खरीद लूं? क्या मैं ईरान से तेल खरीद लूं? क्या ये जवाब दिया इन्होंने? अरे मैं क्यों जवाब दूंगी? अब मेरी नहीं, तरफ इन्होंने मेरा इशारा मतलब ना प्राइम मिनिस्टर ने, करिए। मैं नहीं हूँ देश की प्रधानमंत्री, लेकिन ये सारे You would do a better job. No, I'm sure not. No one would elect me. Mr. Khera, the point is you have a list of questions, a fair list of questions. Valid questions, I will say. The opposition has every right to ask questions of the government. You had the opportunity. No, you they of did not course- have a debate. Where was the debate? But there was a briefing. There was no debate. But there was a briefing Madam, yesterday in which all questions were taken. The country deserves a debate in parliament on something which is happening right in front of your house. By the way, Iris Dena, your guest, ये जो शिप आई थी ईरान की, हमारी मेहमान थी, निहत्थे थे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में निहत्थी शिप्स ही अलाउड थी. उनको मार दिया, सेलर्स मर गए. ये तो मैं भूल गया, अभी याद दिलाया आप. गलत हुआ? गलत हुआ तो बोला प्रधानमंत्री ने गलत हुआ. बताइए, ये मेजर्ड स्टेट्समैन की स्पीच में कहीं सुना आपने? ये चलिए। मैंने तो नहीं सुना. अच्छा, आपने ये तो सुना? बुलाइए ना टाइम्स नाउ के समिट में उनको. अरे आप पूछिए ना ये सब सवाल. आपने आयरिस लवान का नाम सुना है? जी मैंने सुना है. वो कहाँ पे है इस समय? मैंने सब सुना. वो मुझे ईरानी सब शिप कुछ है? मालूम है. उसके बात ये क्रू, है, उसका जो क्रू है बात इंडिया ये में है। 10 दिन रुका ईरान के रिक्वेस्ट पे. बात वो ये शिप है। अभी भी और विशाखापट्टनम उसके में बाद डॉक है। आपने क्रूज की एक तरह से डील की ईरान के साथ कि हमारे ये 2 शिप्स आने दीजिए, हम इन क्रू को छोड़ देंगे. ये क्या है? ये प्रधानमंत्री, ये देश, इस देश का एक चरित्र रहा है हमेशा. ये अब 2 शिप्स जो आई हमारी, इससे पहले वाली जो 2 शिप्स आई, उसके बारे में आप ही लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि कुछ क्रू को छोड़ा और फिर उनको आने दिया. ये भारत इस तरह का कारोबारी देश कभी नहीं रहा है. सिद्धांतों पर चलने वाला देश रहा है. यही हमें शिकायत है इनसे कि एक ऐतिहासिक रिश्ता ईरान से आपका है, उस रिश्ते की तो कम से कम इज्जत करिए. हम ये नहीं कह रहे इजराइल से दुश्मनी की, उनसे भी रिश्ता रखिए, हमने भी रखे थे. बाय द वे, इजराइल गॉट रिकॉग्नाइज्ड Correct. अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट. करेक्ट. सो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. बट एक सिद्धांत पर चलने वाला देश है, उस सिद्धांत को मत कॉम्प्रोमाइज. Mr. Khera, the opposition has every right to criticize the government. That is their job. That's your job profile. You need to do it, right? To keep them straight and honest. My question to you is this. In a situation of a war where there is, and it is a war that will eventually impact all of us if it is not impacting us right now. आप सरकार से सही सवाल पूछिए, no problem. लेकिन ऐसे सवाल सरकार से आप क्यों पूछ रहे हैं जिससे सरकार का कुछ लेना देना नहीं? I just want to come back to the question of INS Dana, where about, I think, 100 Iranian sailors had died, and that was absolutely wrong. It happened in our backyard. I completely agree. But the distress call from 3 ships that were in international waters going back from the Milan exercise from Visakhapatnam had come to Sri Lanka. It had not come to India. India से ईरान ने नहीं बोला था कि let Dana come to us and we refused. हमने नहीं किया. और जब हमसे रेफ्यूज मांगा गया, हमने दिया ईरान को. एक न्यूक्लियर सबमरीन इंडियन ओशन में हमारे पड़ोस, हमारे आंगन में आकर खड़ा है, हमें पता नहीं था. इसका जवाब मुझे आज तक. It's the whole point of a nuclear powered submarine. एक सेकंड, कि किसी को पता नहीं कहाँ है? किसी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ होती है. हमारी इंटेल कहाँ है? अमेरिका भी इस एक्सरसाइज में इनवाइटेड था. लास्ट मिनट पे अमेरिका ने बोला हम नहीं आएंगे. हमारी इंटेल कहाँ है साहब? और निंदा तो कर ले प्रधानमंत्री. चलिए छोड़िए, आप नहीं बचा पाए, हम मान लेते. निंदा करने में क्या आपको परेशानी हो रही है? डरते हैं, यही तो कह रहा हूँ. कायर हैं, डरपोक हैं, यही तो कह रहे हैं हम बार बार. हमारी दिक्कत क्या है? और आज इसीलिए वी आर एट अ स्टेज वेयर पाकिस्तान इज नेगोशिएटिंग एंड मीडिएटिंग बिटवीन Israel, America, why are you so and Iran. impressed with Pakistan mediating? Why? I'm If sorry, at all it they are hurts me. mediating. I'm sorry, it hurts me. Why are you so impressed with Pakistan? I'm not. trying It to hurts mediate? me. Why I'm does it hurt depressed. you? I'm not impressed. I'm sorry. You are getting confused. मुझे तो परेशानी है इस बात की. आप सरकार को हम ताने दे इतना रहे हैं. बड़ा देश आप सरकार को ताने दे रहे हैं. क्यों नहीं देंगे साहब? सरकार, हम होते सरकार में नहीं होता ये, तभी तो ताने दे रहे हैं. आप किसको होते दें हम ताने? अब हमें बताइए. हम श्रेया ढोंडियाल को थोड़ी ताने देंगे? दे दीजिए दो नहीं ताने. दे सकते ना. क्यों? आप सरकार की हैं. नहीं, फिलहाल नहीं. थैंक यू. नहीं है ना, बीजेपी के नहीं है ना, तो आपको थोड़ी ताने देंगे. हम तो उन्हीं को देंगे जिनको आपको तो देना. पता है नहीं हूँ, तो आप क्यों बोल रहे हैं ये बात? मुझे नो, but it's a serious question. Why is Well, the I'm also very serious. Yeah, It's why very is- depressing to see Why? India not even being in the reckoning in any mediation exercise which is happening. But why should we be in the reckoning? Why should we not? But why should we? Why should we Is not? it our war? Because is it Pakistan's war? No, but Pakistan has a long history with Iran. We have a longer history with Iran.
civilizational history with Iran. What are you talking about? And the external affairs What are you minister, talking about? And the external affairs minister yesterday has said we are no one's dalal. आहा, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब। तो दलाल जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं है। ये क्या मतलब है? यूं तो उछल उछल के जा रहे थे साहब, पापा वॉर रुकवाएंगे यूक्रेन। मिस्टर खेरा, यू बीन एन एक्स जर्नलिस्ट, और एक बात बड़ी अच्छी है, मैंने 2-3 बार आप सवाल राहुल गांधी पे पूछने की कोशिश की ना। आपने एक बार भी नाम नहीं लिया राहुल गांधी का? एक बार लिया शुरू में, कहाँ सवाल पूछा? नहीं, ये बिल्कुल गलत आपने कहा राहुल गांधी कल वहां नहीं थे ऑल पार्टी मीटिंग में। मैंने कहा प्रधानमंत्री भी नहीं थे। नहीं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास 100 सवाल थे, पहुंच जाते हैं वहां 1 hour 40 मिनट्स। अरे जब जवाब देने वाला खुद नदारत है तो सवाल पूछने वाला क्या जाएगा? तो वहां पे पेट्रोलियम मिनिस्टर था। अरे प्रधानमंत्री थे इस सरकार में ये वन मैन, ये फाइनेंस, ये 1.5 लोगों की सरकार है। पहले 3 की थी, बेचारे दोवल साहब अब ज्यादा नहीं हस्तक्षेप करते। अब ये 1.5 लोगों की सरकार, आधे अमित शाह और पूरे मोदी। अब ये पेट्रोलियम मिनिस्टर बेचारा क्या है, वो दिन भर आपको बोलता है सोर्सेज कह रहे हैं साहब। अभी सरकार आप चला रहे हो, सोर्सेज चला रहे हैं। सोर्सेज कह रहे हैं कोई कमी नहीं है एलपीजी की। शाम को आते साहब लंबी लंबी लाइन लग रही है। तो ये सोर्सेज वाले लोगों से हमें नहीं सवाल पूछने, हमें सवाल पूछने हैं नरेंद्र मोदी से, और वो गायब। भाई जवाब तो अच्छा सुनिए, आजकल प्रचार करने भी नहीं जा रहे। सुना कोई स्टेट उनको बुला ही नहीं रहा। आसाम कह रहा है मत आना, हार जाएंगे। सच बता रहा हूं मैं। आप कहाँ गए? पंचायत चुनाव में पहुंच जाते थे साहब कलफ लगा के कपड़ों में। न बंगाल जा रहे हैं, न आसाम गए, न केरला वाले बुला रहे हैं। ये हो क्या रहा है प्राइम मिनिस्टर के साथ? जाएंगे, कब जाएंगे? वो मना कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। बोल रहे हैं मत भेजिए इनको, हार जाएंगे। नहीं, आपके पास सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन बीजेपी की कैसे रखनी पड़ती है साहब। अब वहां के लोग खुद बताते हैं फोन कर करके। अच्छा, can I ask you, just switching, to get Why some do you want to perspective. change the topic? I'm not changing the topic. I want to get some perspective. We just have 9 more minutes, so I just thought we'll get some more perspective. But this has been a good chat. I've liked that you have answered all questions, Why not? and so I'm grateful for that. It's always interesting to have people who fight back. Can I ask you why the opposition, particularly the Congress party, particularly the leader of opposition, thinks of the parliament as enemy territory and goes into it with a guerrilla mindset? अच्छा सुनिए, ये किसने बोला? अरे आप सुन, ये श्रेया बोल रही है या बीजेपी बोल रही है? अब मेरा आप सवाल ही नहीं कंप्लीट करने दे रहे। अभी किरण रिजिजू सुबह सुबह आए थे यहाँ, एंड ही हैड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिस्टर राहुल गांधी। ही सेज ये राहुल गांधी आते हैं, ये एक जुमला तैयार करके ले आते हैं रोज या हर दूसरे दिन एक जुमला। अब सुन लीजिए, सवाल बीच में मत बोलिएगा। जुमला तैयार करके ले आते हैं, हेडलाइन ग्रैबिंग जुमला, आते हैं, कुछ करते हैं, इधर उधर की हरकत, जुमला बोलते हैं और निकल जाते हैं। देखिए ये पार्टी डिसरप्शन ही उनकी स्ट्रेटेजी। किरण जी जो हैं बड़े अच्छे आदमी हैं, हमारी पार्टी छोड़ के, इनके मन में वो मलाल है। आपसे बहुत दुखी है वो, इसीलिए दुखी है, 50% दुखी है। के बारे में मन उनका राहुल जी के साथ है, दिन भर उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। तन बीजेपी में है, मन राहुल जी के साथ है। अब क्या करें, उनका तो इस बीमारी का इलाज मेरे पास है। नहीं, वो काफी दुखी थे। आप सिंधिया जी को बुलाइए, वो भी राहुल करते। सिंधिया जी ने तो वो थे यहाँ पे थोड़ी देर पहले। सिंधिया जी, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, ये जितने लोग यहाँ से गए हैं, दिल उनका हमारे लिए धड़क। नहीं तो जबान चलती है मोदी के लिए। हम क्या करें, इसका तो इलाज क्या करें? तो मिस्टर खेरा, प्रॉब्लम तो है ना, अगर आपके सीनियर लीडर्स। हमारी क्या प्रॉब्लम है? अगर दिल उनका हमारे लिए धड़कता है तो उनकी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारा थोड़ी है। लेकिन दिल तो आपने तोड़ा ही होगा ना उनका। हमने नहीं दिल तोड़ा। आपकी पार्टी से एक के बाद एक यंग और ब्राइट लीडर्स बीजेपी चले गए। अभी देखिए असम में क्या हुआ। श्रेया जी वही बता रहा हूँ, असम में जो लड़ाई है ना, वो कांग्रेस और बीजेपी की है ही नहीं। वो निडर कांग्रेस की डरपोक कांग्रेस के साथ। निडर कांग्रेस में गौरव गोगोई हैं, रॉकी बुल हैं, हमारे और साथी हैं, और डरपोक कांग्रेस में हेमंता बिस्वा हैं, भूपेन वोरा हैं, और अभी कोई बोरदोलोई जी गए, वो हैं। डरपोक कांग्रेस इधर है, बीजेपी है ही नहीं। और मतलब ये कांग्रेस युक्त बीजेपी। हाँ। आप चले थे ना कांग्रेस मुक्त भारत बनाने, ये बन गई है कांग्रेस युक्त बीजेपी। ये लड़ाई है। ठीक है, अब देखते हैं निडर कांग्रेस जीतती है। हमें तो लगता है निडर कांग्रेस जीतती है। ऐसा क्यों है मिस्टर खेरा, दैट इफ यू लुक एट द डेटा फ्रॉम 2004, ठीक है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द कांग्रेस वाज इन सम 17 or 19 सीट्स, इट हैज कम डाउन टू 5, टेक्निकली रूलिंग 3 स्टेट्स बट इन पावर इन 2 अदर स्टेट्स। बीजेपी का शुरू होता है 10 स्टेट्स से, एंड इन दिस पीरियड वेयर द कांग्रेस सीज दिस ड्रामेटिक फॉल, द बीजेपी हैज डबल्ड द नंबर ऑफ स्टेट्स इट रूल्स, राइट? सो देयर इज अ प्रॉब्लम ना। Okay, let me give an answer to this. Give us ED, CBI, Election Commission, Gyanesh Gupta especially, and Times Now. अच्छा, हमको भी लपेटे में ले लिया। ये 4 हमें दे दीजिए, नरेंद्र मोदी हमारे दरवाजे पे दस्तक देंगे, साहब मैं पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। Well, नहीं, do you want to answer that question? I have answered that. We have. आपने इलेक्शन कमीशन की बात की? आप देखिए, चलिए रिकॉर्ड निकालिए। ये हमारे सब पुराने साथी रहे हुए हैं जो अब बीजेपी में चले गए। मैं ज्यादा उन पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कल फिर आएंगे। तो लेकिन आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए कौन कौन गया। कुछ ऐसे हैं जिन पर व्हाइट पेपर निकाल रही थी बीजेपी, उनका तो मैं नाम भी लूंगा, हेमंता बिस्वा शर्मा। ये भ्रष्ट है, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, फलाना स्कैम, ढीमका स्कैम। ये रहा व्हाइट पेपर। कहाँ है व्हाइट पेपर? व्हाइट पेपर का नहीं मालूम, हेमंता वहां है। अब अजीत पवार जी हमारे बीच नहीं रहे, उन
पर नहीं कहूंगा, प्रफुल्ल पटेल जी साहब, एयर इंडिया स्कैंडल, बड़ा स्कैम हो गया, सीएजी रिपोर्ट, ये वो, टाइम्स नाउ रोज चिल्ला रहा था साहब सीएजी रिपोर्ट। कहाँ है सीएजी रिपोर्ट, कहाँ है इंक्वायरी, ये नहीं मालूम। प्रफुल्ल पटेल अब इनके साथ हैं। तभी मैं कह रहा हूं आप हमें सीबीआई दे दीजिए, ईडी दे दीजिए, ज्ञानेश गुप्ता वाली इलेक्शन कमीशन दे दीजिए और टाइम्स नाउ दे दीजिए। चलिए, अब आप टाइम्स नाउ के प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो ऐसा तभी तो तो मत, आपको ही सम्मान दूंगा और थोड़ी दूंगा, मैं थोड़ी कहूंगा यहाँ की आज तक दे दीजिए, आप ही का नाम लूंगा। आपने लपेटे में लेना है तो लीजिए। आप मैं कटघरे में नहीं कर रहा, मैं तो कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। आप भी आ जाइए तो देखिए सब आएंगे। ऑनर्ड गेस्ट, यू आर एन ऑनर्ड गेस्ट। आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं और क्योंकि ज्ञानेश गुप्ता जी आप लोगों के बहुत सुपर फेवरेट, जिनको आप लोग रोज याद करते हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। इलेक्शन कमीशन इतना ही कॉम्प्रोमाइज था तो ऐसा कैसे है कि कांग्रेस तेलंगाना जीत जाती है, राहुल गांधी वायनाड जीत जाते हैं, रायबरेली ये लोग बहुत समझदार हैं। प्रियंका देखिए, गांधी बायपोल जीत जाती है, जब तब कोई इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं जब होता। कोई चोर हाँ। बचना चाहता है पकड़े जाने से तो वो समझदारी से काम 4-5 जगह छोड़ देगा और एकदम सीधा संत बन के खड़ा रहे। देखो जीत जाओ साहब, तेलंगाना जीत जाओ, आप चलिए राहुल गांधी को भी जीत जाओ, जीत जाओ, चलो ठीक है, जीत प्रियंका जाओ। हम गांधी को भी हस्तक्षेप जीत नहीं जाओ। करेंगे, जैसा चुनाव हो रहा है फेयर इलेक्शन होने दे, करके दिखा दें ये हमारे साथ। देखिए सड़क पर जनता होगी, ये लोग भी जानते हैं इस बात, ये जानते हैं कहाँ रुकना है। Did the Congress know कहाँ रुकना है when KVK Sundaram was made the chairperson of the 5th Law Commission, a former chief election commissioner? You reminded me of the law commission. Recently, नहीं आप नेहरू जी के वक्त जाएंगे ना तो मैं रिसेंटली ला रहा हूँ। मिस्टर खेरा, यू हैव हितेश जैन नाम का एक आदमी को लॉ कमीशन में बीजेपी लाई, 7 महीने में उससे इस्तीफा क्यों लिया, हम ये जानना चाहते हैं। लाए क्यों पहले तो, फिर इस्तीफा क्यों लेना पड़ा, रातों रात इस्तीफा लेना पड़ा, हम तो जानते हैं क्यों लेना पड़ा, किसी दिन खुलासा भी करेंगे। जब आप नेहरू जी तक जाते हैं ना, इतना पीछे मत जाइए। चलिए, अभी पिछले 10-11 साल की बात कीजिए, हमने गलत किया, सही किया, हमें पनिशमेंट मिला, हम विपक्ष में आ गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज पिछले बोलते हैं 12 ना? साल का लेखा जोखा हम नहीं देंगे, माफ कीजिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं देंगे और इंदिरा जी तो बिल्कुल नहीं देंगी। देना तो इन्हीं को पड़ेगा साहब, क्योंकि 12 साल में ये सत्ता में, इसलिए बार बार ये आपने ये किया, आपने ये बुलाया, उसको बनाया, हमने किया, चलिए, और हमने भुगता। अब इनको भुगतना चाहिए या नहीं, इसका जवाब दीजिए। देखिए, जिसने जो किया उसको उसका तो भुगतना चाहिए ना, तो हम सवाल पूछ रहे हैं। हो सकता है उस वक्त का विपक्ष कमजोर होगा, उसने उस वक्त हमें नहीं रोका होगा, आज का विपक्ष मजबूत है, हम सवाल पूछेंगे। अच्छा, तो आप मुझे भी सवाल पूछने दीजिए। मैं कह रही हूँ आप विपक्ष थोड़े ही हैं। मैं कह रही हूँ, वैसे ऑपोजिशन, वैसे मीडिया का काम तो होता है कि सवाल सबसे पूछे और सरकार से भी पूछे। होना चाहिए, नहीं होता है, होना चाहिए। आपको लगता है नहीं होता था भी, होता था और होना चाहिए, है नहीं होता है नहीं। आप लोगों के जो चश्मे है वो ठीक, मैं टाइम्स नाउ देखता हूँ मैडम। अच्छा चलिए, अब आप सुनिए मेरी बात, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आर.के. त्रिवेदी हो, टी.एन. शेषन हो, डॉक्टर एम.एस. गिल हो, ये सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स थे आपके ड्यूरेशन में, जब आप लोग पावर में थे। सबको आप लोगों ने या तो पार्लियामेंट में फिट कराया, या गवर्नर बनाया, या लॉ कमीशन में दिया। क्या तो आप कह रहे हैं आप कहना चाह रही हैं कि टी.एन. शेषन वाज बायस्ड इन आवर फेवर? बोल के दिखा दीजिए, जनता आपको जवाब दे दे। आई एम सेइंग वाज टी.एन. शेषन बायस्ड इन आवर फेवर? आई एम सेइंग वाज टी.एन. शेषन बायस्ड इन आवर फेवर? पहले इसका जवाब दीजिए, पहले प्लीज इसका नो, जवाब। ही वाजंट। तो फिर आप क्या बोल रही हैं? तो उनको रिवॉर्ड दिया क्योंकि आप बायस्ड नहीं है, यू शुड बी समवन। But here's the point. Where is the proof that that Ganesh Kumar, your favorite, We have given enough proofs. I don't know if you showed those press conferences by Mr. Rahul Gandhi. We have given enough evidence of Mr. Ganesh Gupta being completely compromised. Ganesh Gupta से कमजोर, से ज्यादा compromised अगर कोई है इस देश में तो शायद प्राइम मिनिस्टर। Okay. Competition है, अच्छा, हमें नहीं मालूम, मुझे लगता है वो ज्यादा। Okay, can I ask you what is your reading of Rahul Gandhi as the leader of opposition, the way we have seen him in the budget session? हम अगर लड़ रहे हैं राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए तो हमारी रीडिंग बड़ी स्पष्ट है। हम मानते हैं कि एक बहुत सच की लड़ाई राहुल गांधी बहुत बखूबी लड़ रहे हैं, इसलिए हम उनकी ताकत बनना चाहते हैं। हमारी लड़ाई ये जवाब देती है इस सवाल का कि हम राहुल गांधी के साथ अगर खड़े हैं तो इसीलिए खड़े हैं क्योंकि वो आदमी इस देश, दिस कंट्री डिजर्व्स दिस मैन। But the country and many states have been rejecting Rahul Gandhi, right? The हम fact, फिर कह रहे हैं हमें ईडी दे दीजिए, सीबीआई दे दीजिए, ज्ञानेश गुप्ता दे दीजिए, टाइम्स नाउ दे दीजिए। हर इलेक्शन हम आप फिर सिर्फ इसीलिए हार रहे हैं। हम दोहराते हैं, आप कह रहे हैं कि हम दोहराते हैं, हमें ये दे तो दीजिए, 7 दिन में जवाब दे देंगे ना आपको। पहले आप अमित इलेक्शन, शाह भी इसी पार्टी में दिखेंगे आपको, हम लेंगे नहीं उनको, वो अलग बात। नहीं, आप इलेक्शन जीत जाइए, ये सब आपके होंगे। जी नहीं, हम फिर भी नहीं रखेंगे ऐसे लोगों को। टाइम्स नाउ छोड़ दीजिए, बाकियों की बात। अच्छा ठीक है। द इलेक्शन कमीशन, I beg your pardon, not the election commission, but Kiran Rijiju said that अच्छा होता if Priyanka Gandhi was made the LOP instead of Rahul So who is Gandhi. he to decide? सुन लीजिए, नहीं, ये हमें भी, अरे हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, ये पार्लियामेंट में बैठती है ये और ऐसी सुनती तो पार्टी है जो सरदार पटेल को नेहरू जी से मरने के बाद लड़ाती है। ये ऐसे लोग हैं, ये भगवानों की आपस में लड़ाई करा देते हैं। इनको बोलिए यहाँ सफल नहीं होंगे। आपको हिस्ट्री से प्रॉब्लम है? हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें इन लोगों से प्रॉब्लम है जिनका हिस्ट्री में कोई रोल नहीं है, जिनका हिस्ट्री में नाम नहीं है और ना नाम लेने वाला कोई बचेगा। इनका हिस्ट्री में नाम नहीं आएगा। एक बार बताइए, They'll be in the dustbin of history. एक बार बताइए, कंसिस्टेंटली आप एक ऐसे स्टूडेंट को प्रीफेक्ट अपनी क्लास का कैसे बना सकते
सकते हैं या मॉनिटर कैसे बना सकते हैं जब वो कंसिस्टेंटली अपनी क्लास में फेल हो रहा हो। अगर 2024 का ही हम आंकड़ा देख ले, अरे सवाल तो सुन लीजिए, 2024 का अगर हम आंकड़ा देख ले तो देयर आर 2 इलेक्शंस, यू गॉट 99 सीट्स which you did very well in the general election, and after that you lost 7 elections, 7 state elections, and you won 2. This is a pretty terrible track record, won't you say? And yet the guy continues to be the leader of your party. Tell me, he is fighting a battle where the media is not with him. Agencies, of course, are doing what they are doing. चुनाव आयोग मीडिया से जीतते हैं क्या इलेक्शन? वाह, चलिए अगर आप कहते हैं मीडिया से नहीं जीतते, अगले 1 महीने जो हम आपको स्टोरी दें, आप भले जांच लीजिएगा कि स्टोरी सही है या गलत, वो कर लीजिएगा, चला के दिखाइए, फिर हम आपको बताते हैं कि मीडिया से क्या होता है। कांग्रेस, अरे साहब, 2014 से पहले हम देखते थे आप सबको, ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ सीएजी, करप्शन करके दिखाइए ना। मैं आपको सीएजी की रिपोर्ट देता हूँ, कल भिजवाता हूँ आपके। प्लीज भिजवाइए। आप चला के दिखाइए, मैं भिजवा दूंगा। अच्छा, पहले आप सवाल का तो जवाब नहीं, इसका जवाब दीजिए ना। चलाएंगी? आप दीजिए तो चलाएंगे। आपके बॉसेस तो सब यहीं बैठे हैं। हाँ, नहीं बैठे, अभी तो नहीं बैठे। बुलाइए उनको, पूछिए सब चलेगा। सीएजी रिपोर्ट्स चलाएंगे? सब चलेगा। नहीं चलता है मैडम, 12 साल से नहीं चल रहा है। फिर आप हमसे पहले आप विपक्ष को कमजोर करते हो, पहले आप विपक्ष को खेल रहे हैं, पहले आप हर जगह विक्टिम बोलने दीजिए ना। पहले विपक्ष को आप कमजोर करते हो, फिर कहते हैं अरे विपक्ष कमजोर हो गया। अरे किया तो आप ही ने है, ये कुल हुजूर आपके ही खिलाए हुए हैं। देश की जनता ने कमजोर किया, आपको इलेक्ट नहीं करके। देश की जनता ने नहीं किया। देश की जनता बिल्कुल, आप मुद्दे उठाइए तो जनता से रिलेटेड। कितने आपने शोज किए हैं जो कतारें लगी हुई हैं एलपीजी की, बताइए ना कितने? मैंने नहीं देखा, माफ कीजिए। जब कतारें लगी थी उनको दिखाया गया। चलिए अभी दिल्ली में दिखाते हैं आप। सर मैं आपको दिल्ली में दिखाता हूँ, लाइन लगी हुई या नहीं। 5,000 रुपए में कमर्शियल सिलेंडर हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में मिल रहा है या नहीं? चलिए मैं बता रहा हूं। There is a problem with commercial cylinders. I agree with you. आपने चलाया, आपने डिबेट की? Of course सर, चलाया है। फिर आपने आज पूछा किरण रिजिजू से, जो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे राहुल जी पर? सर सवाल सारे पूछे जाते हैं, आप सुनते नहीं। आपने पूछा उनसे? और हमारे पास 53 सेकंड्स बचे हुए। चलिए फिर आप। हाँ, तो एक सवाल मेरा है, देख लीजिए कागज, देखिए कागज में तो बहुत पढ़ाई लिखाई की थी, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ because you didn't let me get to the data I have, but forget it. We had Asaduddin Owaisi here a short while ago, and he was saying मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कांग्रेस मुझे बार बार क्यों बोलती है कि मैं बीजेपी का बी टीम हूँ। तो आई वांट टू नो ये रिश्ता क्या कहलाता है। एंड ऑल्सो विद मिस्टर शशि थरूर, आपको तो शायद उन्होंने क्रिटिक एंड ट्रोल ही बोल दिया था पब्लिकली। तो रिश्ता, आई डोंट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। शशि थरूर हमारे दोस्त हैं। हाँ, बिल्कुल है। ओवैसी साहब भी बड़ी अच्छी दावत देते हैं, अच्छे आदमी है। हाँ, तो उनकी राजनीति से हम सहमत नहीं है। ओवैसी क्यों? वो जानना चाह रहे थे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं बी टीम बन गया बीजेपी का। I'll tell you why. If we are opposed to the RSS brand of Hindutva politics, we are opposed to the Owaisi brand of counter politics. We believe in centrism. We believe in secular politics. We do not believe in identity politics. साहब, मैं हिंदुओं की राजनीति करूंगा, वो कहेगा मैं मुसलमानों की राजनीति करूंगा। दोनों गलत हैं साहब। मैं देश की राजनीति करूंगा, मैं संविधान के दायरे में रहकर राजनीति। मुसलमान की तो राजनीति आप भी करते हैं। नहीं, हम नहीं करते, हम पूरे देश की करते हैं। आप बताइए, 54 साल अगर हम जीतते आए इलेक्शन, तो क्या सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीतते हैं? कमाल की बात कर रही है। हिंदू वोट नहीं देता था। अभी मैंने आपको बताया कि आप मुसलमानों का राजनीति करते हैं। जी नहीं, आप गलत कह रही हैं। हम बिल्कुल गलत कह रही हैं, गलत कह रही हैं। हम सेक्युलर लोग हैं, हम सबको मानते हैं इस देश का, फुल स्टॉप। अच्छा चलिए, हमारे बिल्कुल टाइम अप हो गया, बट एनीथिंग ऑन शशि थरूर? टाइम अप तो होने वाला है इनका, बीजेपी वालों। वो देखेंगे। शशि थरूर का भी नहीं होगा, हमारा भी नहीं होगा। शशि थरूर का टाइम अप होने वाला है कांग्रेस में। हमारे दोस्त हैं वो, बीजेपी की बात कर रहे हैं। नहीं तो शशि थरूर तो दोस्त जैसा कोई काम ही नहीं करते हैं। आप नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह कर रहे हैं। पब्लिकली ही इज डिसिंग द स्टैंड यू आर टेकिंग ऑन द वेस्ट एशिया वॉर। आप लोग कोशिश करते रहिए, हम लोग नहीं लड़ेंगे। भैया लेख लिखा उन्होंने, हम लोग नहीं लड़ेंगे। लिखा उन्होंने, उसमें भी हमारी प्रॉब्लम है। देखिए, जो मुद्दे होते हैं जिसपे कांग्रेस अध्यक्ष हमारी सोनिया जी, राहुल जी, हम सब एक स्टैंड लेते, वो अधिकृत स्टैंड। उसके बाद कोई क्या लिखता है, क्या बोलता है, वो उनका निजी और उसका अधिकार उनको है। आई एम ग्लैड यू डिडंट से इन अ पार्टी डेमोक्रेसी, बिकॉज़ दैट वुड बी अनदर डिबेट। वी लीव इट देयर। टाइम अप। वी लीव इट देयर। थैंक यू वेरी